ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 3 ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜੇਕਰ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए। तो फिर तुसीं देख सकते हो कि पुलिस दी टीमां जिहड़ियां ने वो लगातार बिल्कुल। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो 2 शूटर्स हैं जिसमें मनप्रीत मनु और रूपा, जगदीप रूपा, इनको लेकर के यहाँ पर पूरे इलाके को सील किया गया है। मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, पुलिस की काफी ज्यादा मौजूदगी यहाँ पर है, एक्स्ट्रा फोर्स है। होशियार नगर ये गाँव है, पाकिस्तान बॉर्डर के समीप है और जिस 2 महीने में हम देखें तो इन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। लगातार इसको लेकर के पंजाब में सियासत भी काफी हो रही थी और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि इस वक्त एनकाउंटर वहां पर चल रहा है जिसमें मौजूदगी है मनप्रीत मनु। ये वो नाम है जो गोल्डी बराड़ का बेहद खास ये बताया जाता है और सबसे पहले इस हत्याकांड में इसी को शामिल किया गया था। ये जेल में भी लेकर के आया था और लकी पटियाला गैंग से ये बदला लेना चाहता था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि क्या इन दोनों को जो पकड़ा गया है, घेरा गया है, क्योंकि इस वक्त पूरे इलाके को सील किया गया है, तो वहां पर क्या ये घायल हुए हैं, क्योंकि पुलिस को इनको जिंदा पकड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर ये जिंदा पकड़े जाते हैं तो कई सारे राज इनसे उगले जाएंगे। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को पूरे फिल्मी तरीके से अंजाम दिया गया और ये आज बहुत बड़ी तस्वीर है जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई और इस वक्त जो 2 नाम थे जिसमें सबसे अहम नाम मनप्रीत मनु, जिसको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो दाहिना हाथ था गोल्डी बराड़ का, जो इस पूरी वारदात में शामिल रहा था, ये जेल से बाहर आया, किस तरीके से इसने गैंग से बदला लेना चाहा और इसी का फायदा यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने उठाया था। ये भी जानकारी मिली थी कि जो विदेशी हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया था वो विदेशी हथियार जिनको पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई थी। तो जो ये मुठभेड़ चल रही है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास होशियार नगर का ये वो इलाका जहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और एम्बुलेंस की भी वहां पर मौजूदगी है। पहले एक एम्बुलेंस की गाड़ी थी, अब दूसरी गाड़ी वहां पर पहुंचती है। पूरे इलाके को सील किया गया है और जो वहां पर बैरिकेडिंग की गई है उसके ज्यादा लोग आगे नहीं पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और ये आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरोपी जगरूप, रूपा और मनु के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है जिसमें सिटी पुलिस फोर्स भी मौजूद है, इसके अलावा देहात पुलिस फोर्स भी मौजूद है और ये होशियार नगर का गांव है जहां पर बाइक में जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मौजूदगी कैसे है, तो क्या ये मान लिया जाए कि
जिन दो लोगों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई थी, क्योंकि पंजाब में इसको लेकर के सियासत हो रही है। सुखबीर बादल कह रहे थे कि अभी तक तो जितनी भी गिरफ्तारियां सिद्धू मूसेवाला केस में हुई हैं वो दिल्ली से हुई है। ऐसे में पंजाब पुलिस क्या कर रही है? और अगर मनप्रीत मनु पकड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लगातार वहां से पंजाब से लोगों की एक ही आवाज है, जो उनके परिवार वाले हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ तभी मिलेगा जो ये पूरा गैंगस्टर सिस्टम पंजाब में इस वक्त काम कर रहा है और किस तरीके से, क्योंकि 2 महीने से ये ठिकाना बदल रहे थे। पुलिस लगातार गश्त कर रही थी, पुलिस इनको ढूंढ रही थी, लेकिन तब भी पुलिस इनको ढूंढ नहीं पाती है। कौन इन लोगों की मदद कर रहा था? इनके पीछे कौन कौन लोग हैं? क्या दूसरे गैंगस्टर्स भी इनकी मदद कर रहे थे? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। और हमने देखा कि इस केस के तार विदेशों से जुड़े। गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठा हुआ है, वो अपना एक उसका ऑडियो सामने आता है जो न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाया था, जिसकी पुष्टि खुद दिल्ली पुलिस ने की थी। उसने बताया था कि उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल क्यों किया। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज की सबसे बड़ी तस्वीर है ये, किस तरीके से पूरे इलाके को घेरा गया है और स्पेशल टास्क फोर्स वहां पर एनकाउंटर करिए। दीपक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, आप इस केस से लगातार जुड़े रहे हैं, पल पल की अपडेट, ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखाई है। ये दोनों अगर वहीं पर हैं और पकड़े जाते हैं तो ये पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जसप्रीत, देखिए इसमें से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि शायद एक को गोली लगी है और उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक यहाँ पर ये कंफर्मेशन जब तक अधिकारी नहीं करते तब तक हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बड़ी मुठभेड़ है और इस मुठभेड़ में अतिरिक्त पुलिस बल को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो हमलावर है जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू के यहाँ पर होने का इनपुट जो मिला हुआ था, उसके बाद जो हमलावर हैं उनके साथ कई और लोग भी शामिल थे जो इतनी देर से पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। और इसी वजह से फोर्स को यहाँ पर बढ़ाया गया था ताकि जल्द से जल्द जितनी फोर्स लाया जा सके, क्योंकि पंजाब के अमृतसर का जो वो इलाका है जहां से तरन तारण दूर नहीं है और यही वजह है कि अवैध हथियारों की खपत वहीं से आई थी। और हो सकता है कि इनके पास जहां पर ये ठिकाना था, जिस जगह पर ये छिपे हुए थे, यहाँ पर भारी हथियार थे, गोला बारूद था और इसी वजह से ये पुलिस से इतनी देर से मुकाबला कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस बल ने चारों तरफ रोका हुआ है सभी को। और अगर यहाँ पर जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू अगर यहाँ पर पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो ये बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस के लिए कही जाएगी, क्योंकि ये वही दोनों आरोपी हैं जिन्होंने जो सिद्धू मूसेवाला को पहली गोली मारी थी मनप्रीत ने। और ये दावा किया जा रहा था कि उसने गोली मारी, उसके बाद दीपक मुंडी और जगरूप रूपा और मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बदमाश के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। कौन है ये बदमाश, इसका पता चल जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है जिसमें जगदीप रूपा और मनप्रीत मनु ये यहाँ पर इस वक्त शामिल है, जिनको लगातार पंजाब पुलिस पिछले 2 महीने से पकड़ रही थी। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। किस तरीके से यहाँ पर हथियार मंगाए जाते हैं, पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल होता है, विदेशी पिस्टल का इसमें इस्तेमाल होता है। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि एक इसमें बदमाश मारा गया है। इस बदमाश के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, जो ये बदमाश मारा गया है इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, कौन है ये? देखिए जसप्रीत, अभी तक मैंने कहा कि एनकाउंटर हुआ है, एक की मौत की यहाँ पर खबर आ रही है, लेकिन अभी ये कौन है, क्या जगरूप रूपा है या फिर मनप्रीत है या फिर कोई और है, इस बारे में पुलिस ऑफिसर सही बयान देंगे। लेकिन मरने की खबर यहाँ पर अब पुख्ता हो रही है क्योंकि एम्बुलेंस को जिस तरह से बुलाया गया था उससे ये साफ हो चुका था कि कोई ना कोई गोली लगने से घायल हुआ है, जिसके बाद मौके पर अब गोलीबारी नहीं हो रही है। लेकिन मौके पर गोलीबारी नहीं होने का मकसद ये भी है कि यहाँ पर एनकाउंटर हो सकता है कि खत्म हो गया हो और उसके बाद जिस जगह पर गोलियाँ चली थी, जिस जगह पर ये बदमाश छुपे हुए थे, उस जगह पर घेराबंदी करके उन लोगों में से एक की यहाँ पर मौत की खबर जिस तरह आ रही है। तो कहा जा सकता है कि कोई ना कोई इन दोनों में से ढेर हुआ है। और अगर इन दोनों में से ही ये कोई ना कोई जो जिसकी मौत हुई है, अगर वो जगरूप रूपा या फिर मनप्रीत कुस्सू होता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस के लिए कही जाएगी, क्योंकि पूरा पंजाब चाहता था कि इस पूरे मामले में आरोपियों को किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए। और यही पंजाब पुलिस की कई यूनिट कर रही थी कि इनको कहीं ना कहीं से घेराबंदी की जाए। 21 जून को जब इनका CCTV सामने आया था तो उसके बाद ये पता चल पाया था कि ये दोनों यहीं पर मौजूद है, यानी पंजाब से वो भागे ही नहीं थे। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ये तीनों, दीपक मुंडी और जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू, इन तीनों में से ये 2 लोग अलग हो गए थे। और यही वजह थी कि ये पंजाब के तरन तारण या फिर अमृतसर इन्हीं इलाकों में छिप कर रहे थे। और आज होशियारनगर में ये इनपुट जब मिला था तो पुलिस ने पहले 2 गाड़ियां भेजकर वहां कर देखा कि वहां पर कितने लोग हो सकते हैं। आसपास का इलाका देखा, एक छोटा सा शहर है, छोटा सा गाँव का इलाका है, ये कहा जाएगा होशियारनगर। और यहाँ पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन जवाबी फायरिंग करने के बाद पुलिस बल को अतिरिक्त बढ़ाया गया। और उसके बाद अब यहाँ पर जब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मुठभेड़ में एक गैंगस्टर मारा गया है, यानी एक मारा गया है तो यानी वो मनप्रीत मन्नू है या फिर
जगरूप रूपा है ये फिलहाल पुलिस खुलासा करेगी या कोई तीसरा बदमाश मारा गया है, क्योंकि इनके पास से भारी हथियार बरामद पहले भी हुए थे और यहाँ पर भारी हथियार होने की उम्मीद भी पुलिस को थी और यही वजह थी कि अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ पर बढ़ाकर यहाँ पर घेराबंदी की जाए ताकि इनको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन उन्होंने जवाबी फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग के बाद इन लोगों को काबू करना मुश्किल हो रहा था। फिलहाल अब पुलिस का ऑफिशियल बयान का इंतजार रहेगा कि इसमें से किसको गोली लगी है, किसकी मौत हुई है, ये फिलहाल पुलिस बताएगी जसप्रीत। लेकिन बड़ी कामयाबी कही जाएगी क्योंकि बिल्कुल तो जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मनु, दीपक बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि एक बदमाश इसमें मारा गया है। क्या जो बदमाश मारा गया है वो जगरूप रूपा है या फिर मनप्रीत मनु है, इसमें हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये दोनों की तस्वीर है, ये वो बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं जो लगातार अपना हुलिया भी बदलते रहे हैं, ऐसा पुलिस की तरफ से बताया गया। क्योंकि बिना हुलिया बदले 2 महीने तक छिपते छिपाते अब ये जो इलाका है होशियारनगर का इलाका, अटारी बॉर्डर के पास, ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये इलाका पड़ता है, छोटा सा गांव है जहां पर लोगों में ये चर्चा का विषय कि इतनी पुलिस की मौजूदगी कैसे है। लेकिन इसमें यह भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, एक बदमाश मारा गया है और 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है, एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर बुलाई गई है। पिछले 2 महीने से जिन बदमाशों की तलाश थी, जो पूरे मास्टरमाइंड थे, जो भाग रहे थे, कौन इन लोगों की मदद कर रहा था, कैसे ये लोग हुलिया बदल रहे थे, क्या जो वहां के और गैंगस्टर्स है वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद कर रहे थे। क्योंकि मनप्रीत मनु की अगर हम बात करें तो ये जेल में बंद रहा था, इसने बताया था कि इस तरीके से इसकी जेल में बेइज्जती होती है। और जो वीडियो वायरल किया जाता है लकी पटियाला गैंग की तरफ से, तो मनप्रीत मनु इस बात का बदला लेना चाहता था और इसी का फायदा उठाया यहाँ पर गोल्डी बरार ने। दाहिना हाथ गोल्डी बरार का मनप्रीत मनु, जो लगातार उस गाड़ी में भी सवार था, जैसा कि हम बता रहे थे कि जो पहली गाड़ी थी जिसमें प्रीवत, फौजी था, अंकित था, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा। लेकिन ये 2 वो चेहरे जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये 2 वो नाम मनप्रीत मनु, जगरूप सिंह रूपा, जो लगातार छिपते रहे। अब इनके पास से ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि काफी मात्रा में हथियार भी मौजूद हैं। ये हथियार कहां से आए, कौन इन लोगों को मदद पहुंचा रहा था, क्योंकि पहले प्रैक्टिस की गई थी, रेकी की गई थी, फिल्मी स्टाइल में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और अब अमृतसर में पुलिस का आरोपियों से आमना सामना हुआ है, मुठभेड़ चल रही है, अभी भी पुलिस की मौजूदगी है, एक बदमाश इसमें मारा गया है, अभी अमृतसर में ये मुठभेड़ चल रही है। ये बदमाश कौन है, अगर जगरूप रूपा या मनप्रीत मनु है तो आप सोचिए कि जिनको पुलिस तलाश रही थी, जिसको लेकर के लगातार पंजाब पुलिस भी निशाने पर थी, पंजाब सरकार यहाँ पर निशाने पर थी कि जिस तरीके से वहां पर वीआईपी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ क्रिमिनल है, कोई भी गैंगस्टर है, कोई भी टैररिस्ट है, तो सब तो पहला उसनू मौका दिता जाता, उसनू जो है एक ये कहा जाता कि वो अपने आप नू जो है पुलिस के हवाले कर सकता, और जेकर नहीं भी करता तो पुलिस की दूसरी कोशिश ये होंदी है कि उसनू जिंदा गिरफ्तार किया जाए। पर जेकर कोई अगों पुलिस की टीम के उपर फायरिंग करता तो फिर पुलिस जो है सैल्फ डिफेंस के लिए भी गोली चलाती है, और जेकर यह जे क्रिमिनल लोगों के खिलाफ पुलिस नू सख्त कार्रवाई करनी पवे तो वो कानून नू जो है कानून के दायरे दे विच रह के कीती जांदी है। तो इस तरीके दे नाल इत्थे जिहड़ी कार्रवाई कीती गई उस दे विच न्यूज़ 18 पंजाब के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर पहले तो गोलियों की काफी ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी गोलियां नहीं सुनाई दे रही है, गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वहां पर शांत है। लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि जिंदा पकड़ा जाए। लेकिन जब कोई गैंगस्टर बदमाश पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। यही वजह है कि इसमें एक बदमाश मारा गया है। अभी पुलिस वहां पर, पुलिस की मौजूदगी है, फोर्स वहां पर तैनात है। ये जो जंगल है यहाँ पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है, ये होशियारनगर गांव है जहां पर जगदीप रूपा और मनप्रीत मनु की मौजूदगी हो सकती है। ये बहुत बड़े नाम है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद हमने देखा कि एक के बाद एक परतें खुलती गई, हर दिन एक नई कहानी सामने आती गई, और इस कहानी के बहुत सारे किरदार है, हर किरदार को एक जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें मनप्रीत मनु, जिसको सबसे पहले इस हत्याकांड में शामिल किया गया था, पहले रेकी होती है, और अब इस वक्त जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मनप्रीत मनु के होने की खबर मिल रही है। अगर जिंदा पकड़ा जाता है तो बहुत सारे राज से पर्दा उठेगा और
पुलिस की कड़ियां जो तलाशने की कोशिश की गई है, जो तार जुड़ते चले गए, किस तरीके से ये तार यूपी से होते हुए, दिल्ली से होते हुए पंजाब, फिर पाकिस्तान यहाँ पर कनेक्शन, और कनाडा से जो गोल्डी बरार का स्टेटमेंट सामने आया था, अब अमृतसर में पुलिस का आरोपियों से आमना सामना हो रहा है। ये आज की बहुत बड़ी तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अटारी गांव का ये होशियार नगर इलाका, जहां पर पुलिस का आमना सामना हुआ है इन दो बदमाशों से, जो कि बताए जा रहे हैं मनप्रीत मनु और इसके अलावा बताए जा रहे हैं जगदीप रूपा। इनके बारे में जो जानकारियां निकल करके सामने आई है, इसमें यह है कि पुलिस को काफी समय से इन लोगों की तलाश थी, और ये भी जानकारी मिली है कि मनप्रीत की चचेरी बहन को बम्बिया गैंग से जुड़े बदमाश छेड़ा करते थे, और इसी को लेकर के मनप्रीत को सबक सिखाया गया था। लेकिन पंजाब की जेल में मनप्रीत काफी समय से बंद रहा था। ये मनप्रीत मनु के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि शुरुआत इसकी कैसे हुई, मनप्रीत मनु इस गैंग में शामिल कैसे हुआ, कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास बन गया, और जो इस कहानी के अलग अलग किरदार हैं उनमें होड़ मची थी कि वो इस काली दुनिया में अपना नाम कमाए, सबकी जुबान पर उन्हीं का नाम हो। और मनप्रीत मनु जो बताया जा रहा है कि लकी पटियाला दविंदर बम्बिया गैंग की जेल में बंद बदमाशों ने